Hello students, this is Ejas's Maths Academy New Era and I am Ansar sir. We are studying physics. Today we have to see the second method in which we will derive an expression for capillary rise or fall. Depending upon the diameter of the capillary tube, we will find out to how much height the liquid will rise or fall and the other factors also on which this rise or fall depends. First of all, see, we have studied what is capillarity, the rise or fall of a liquid in a capillary tube. When the capillary tube is immersed in a liquid is called capillarity or capillary action. And you know, if it is a wetting liquid, angle of contact less than 90 degrees acute angle, then the liquid will rise. And if we take a liquid which has angle of contact obtuse or greater than 90 degrees, the liquid level will go down, it will fall. Okay. So here what type of liquid will it be? Can you think of? Yes, very good. It is a liquid which wets the solid surface. Here it is a liquid which wets the solid surface. It is a liquid which wets the solid surface, and we can suppose that this is water. Let us suppose that this liquid is water. And this capillary tube, suppose, is made up of glass. I will label it here. It is a glass capillary tube. Glass capillary tube. See, this is a beaker containing water and we have immersed a glass capillary tube into the beaker, into the liquid. Now what will happen? This liquid level will rise into the capillary tube and the height of the liquid level, the height of the liquid in the capillary tube above the other liquid outside the capillary is shown here. This h is the height of the liquid in the capillary tube. And let us suppose, first of all let us derive, so let us suppose the surface tension T is the surface tension of the water. We will denote other things after we derive it. ठीक है, एक साइड में I will write down and then we will show. Now see, अब ध्यान से समझो. We know this is water and water is making an angle of contact, acute angle with the glass surface. So this meniscus in the capillary tube will be concave upwards. ऊपर concave रहेंगी. As seen from above, it will appear to be concave. तो ये surface concave है. And you know surface tension का जो force होता है वो हमेशा tangentially act होता है ना? हमने पढ़ चुका है, definition में भी हमने बता चुके हैं. तो surface tension के कारण ये देखो, ये adhesive force क्या करता है? We know water में और glass में adhesive force ज़्यादा होता है. तो because of that adhesive force, these liquid molecules want to go up. लिक्विड मॉलिक्यूल्स ग्लास के ऊपर चढ़ना चाहते हैं. ऑलरेडी वो कहां तक चढ़ चुके हैं? यहां तक. वो और ऊपर चढ़ना चाहते हैं. तो आप और ऊपर चढ़ने के लिए मॉलिक्यूल्स तो ऊपर चढ़ना चाहते हैं ग्लास की तरफ, लेकिन दूसरे कोहेसिव फोर्स के कारण क्या होगा? ध्यान से समझो. यहां पर मॉलिक्यूल है, यहां मॉलिक्यूल है, यहां मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल कहां जाना चाह रहे हैं? ऊपर. तो कोहेसिव फोर्स इनको किधर खींचेगा? ये मॉलिक्यूल्स का इधर खींचेगा अंदर. ये एरो समझ गए क्या है? ये एरो बता रहा है सरफेस टेंशन का फोर्स. दिस एरो शोज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन क्या है? इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग एट राइट एंगल्स on both the sides of an imaginary line drawn on a free liquid surface. Surface tension is always a tangential force. Surface tension का force हमेशा tangential होता है. ये cohesive forces खींच रही है, समझे क्या? See, यहाँ पर मैंने कितने डॉट्स बनाया? 3 डॉट्स. मतलब वो क्या है? 3 वाटर मॉलिक्यूल्स है. वाटर मॉलिक्यूल्स में आपस में कौन सा फोर्स है? कोहेसिव फोर्स. तो कोहेसिव फोर्स के कारण ये इधर खींच रहा है, ठीक है, नीचे खींच रहा है. लेकिन ये मॉलिक्यूल नीचे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि एडहेसिव फोर्स जो है वो भी ऊपर खींच रहा है. और यहाँ पर ध्यान से समझना कि ये फोर्स जो है ये एक्शन फोर्स है. दिस फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. ये डायग्राम क्या है? ये जो मैंने बनाया, दिस इज ओनली द कैपिलरी ट्यूब है. ये मैंने इसमें का बीकर हटा दिया क्योंकि हमको क्लैरिटी चाहिए, हमको थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाना जरूरी है. ये छोटा दिखता था डायग्राम, इसलिए मैंने जानबूझ के ये कैपिलरी ट्यूब का मैग्नीफाइड व्यू मैंने यहाँ साइड में बनाया.
तो ये वाली जो हाइट है, दिस इज द हाइट ऑफ द लिक्विड। ऊपर जो कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड राइज हुआ है, ये उसकी हाइट है, ठीक है। और यहाँ पे चाहो तो आप कहो तो लिक्विड बना देता हूँ, डॉट 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 डॉट, दिस इज द लिक्विड, ठीक है। ये कैपिलरी ट्यूब में भरा हुआ लिक्विड है, ये उसका लेवल ऊपर तक चढ़ गया, ठीक है। सरफेस टेंशन का फोर्स समझिए डाउनवर्ड में क्या कैसे बनाया मैंने। सरफेस टेंशन एक्ट्स टेंजेंशियली, कोहेसिव फोर्स जो है, सरफेस टेंशन का फोर्स इधर एक्ट हो रहा है। अब इधर एक्ट होते समय कोहेसिव फोर्स अंदर एक्ट हो रहा है, वो क्या करता है, ग्लास की जो सरफेस है, अब यहाँ पर एक ग्रीन कलर का मॉलिक्यूल बना देता हूं मैं ग्लास का, देखो डायग्राम इजीली दिख रही ना आपको, समझ में तो आ रहा है ना। और भी मैग्नीफाइड व्यू बना देता हूं मैं। ये देखो, ये ग्लास कैपिलरी ट्यूब है, और बड़ा बना दिया, डायमीटर और बड़ी कर दिया मैंने। और ये है वाटर की मेनिस्कस इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। व्हाट इज दिस, ये क्या है, अभी इसको लिख के मिटा दूंगा मैं। कैपिलरी ट्यूब है, काय का बना हुआ है, ग्लास, उसके अंदर क्या है, वाटर, कैपिलरी ट्यूब के अंदर वाटर है। ये ऊपर की जो बनी है ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द मेनिस्कस, ये मेनिस्कस है, ठीक है। अब यहां पर ये मिटाकर, कर्व सरफेस को मिटाकर मैं यहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बना दूंगा। ये देखो मॉलिक्यूल, अच्छा ऐसा बनाने के बदले में मैं मॉलिक्यूल बना देता, देखो वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल, दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है। कौन से शेप में अरेंज हो गए, कॉनकेव अपवर्ड्स, दीज आर द वाटर मॉलिक्यूल्स। अब यहां जो वाटर मॉलिक्यूल है, यहां जो वाटर मॉलिक्यूल है, दिख रहा है, इसको बड़ा कर दूं, ये बड़ा, ये वाटर मॉलिक्यूल जो है रेड वाला, जिसको मैंने बड़ा कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया, उस वाटर मॉलिक्यूल को दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स किस डायरेक्शन में खींच रहे, नीचे। और ये कौन सा फोर्स है, कोहेसिव फोर्स है, सरफेस टेंशन का फोर्स है। मैंने जानबूझ के एरो थोड़ा साइड में बनाया, क्योंकि अगर वो रेड डॉट्स पे अगर मैं एरो बनाऊंगा तो डॉट्स दिखेंगे ही नहीं आपको। एक्चुअली ये एरो कहां होना चाहिए, ये एरो होना चाहिए ये डॉट्स पर, ठीक है। अगर मैं ये डॉट्स को टेंजेंट बना देता हूं, ये ऐसी डॉट्स पे टेंजेंट बना देता हूं ऐसी, तो यहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट भी बन जाएगा थीटा, यहां एक एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा बनेगा। अब डेफिनेशन बताओ एंगल ऑफ कांटेक्ट की क्या है, द एंगल बिटवीन द सॉलिड सरफेस, और ये क्या है, ग्लास, सॉलिड है ना, ग्लास कैपिलरी ट्यूब का, द एंगल बिटवीन द सॉलिड सरफेस एंड द टेंजेंट ड्रॉन टू द लिक्विड। ये लिक्विड पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड यानी इन कांटेक्ट विद एयर, ऊपर क्या है, एयर है, एयर के कांटेक्ट में ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स है। और वो वाटर मॉलिक्यूल्स को मैंने क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, ये दिस इज द टेंजेंट टू द वाटर मॉलिक्यूल्स। लिक्विड मॉलिक्यूल्स को मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, और यहां बन गया एंगल ऑफ कांटेक्ट। इतना क्लियर हो गया, एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब ये वाला जो रेड वाला जो लिक्विड मॉलिक्यूल है, ये रेड वाला जो लिक्विड मॉलिक्यूल है, दिख रहा है, बड़ा वाला मॉलिक्यूल बना है मैंने रेड कलर का। तो ये जो रेड कलर का लिक्विड मॉलिक्यूल, उसको कोहेसिव फोर्स यानी सरफेस टेंशन का फोर्स जो है T, वो किधर खींच रहा है, ये सरफेस टेंशन है, कोहेसिव फोर्स के कारण किधर खींच रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है। अंडरस्टूड। कोहेसिव फोर्स पता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। ये पानी के बूंद इसको नीचे खींच रहे हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल है वाटर मॉलिक्यूल, इसको अडहेसिव फोर्स भी ऊपर खींच रहा है। कौन सा फोर्स ऊपर खींच रहा है, अडहेसिव फोर्स। और ये वाटर मॉलिक्यूल कहां जा रहा, ऊपर जा रहा कि नीचे जा रहा, किधर भी नहीं जा रहा। आप बोलेंगे नहीं ना सर ऊपर जा रहा, अभी ऊपर नहीं जा रहा। पहले देखो वाटर मॉलिक्यूल ये वाला जो है जिसको मैंने बनाया, जिसको रेड वाला जो ड्रॉप मैंने बनाया, ये ड्रॉप पहले यहां था, कोहेसिव फोर्स इसको नीचे खींच रहा था, लेकिन फिर भी ये कहां चला गया, ये यहां चला गया ऊपर, यहां चला गया ऊपर। बात समझ रहे हो। तो अब इससे ज्यादा ऊपर वो नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि जितने और वो नीचे भी नहीं आ रहा। पूछो नीचे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि जितने फोर्स से कोहेसिव फोर्स नीचे खींच रहा है, अब उसको उतने फोर्स से एडहेसिव फोर्स भी आ गया। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स उसको नीचे अंदर खींच रहे हैं जितने फोर्स से, उतने ही फोर्स से न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से ये ग्लास को नीचे खींच रहा है। ये जो रेड वाला मॉलिक्यूल है जितने फोर्स से, अब देखो ये मॉलिक्यूल्स को नंबर दे सकता हूं चाहे तो। मॉलिक्यूल ये जो बड़ा वाला मॉलिक्यूल, इसको जीरो मॉलिक्यूल बोलेंगे, फिर फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आपको दिख रहे नहीं होंगे नंबर, लेकिन इमेजिन कर लो ये 0 नंबर का मॉलिक्यूल जो है, या उसको नंबर देना चाहिए, अच्छा फर्स्ट नंबर का जो मॉलिक्यूल है उसको नीचे कौन खींच रहा है, सेकंड मॉलिक्यूल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ मॉलिक्यूल सब नीचे खींच रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल को ये मॉलिक्यूल नीचे खींच रहे हैं और इसी को सरफेस टेंशन बोलते हैं, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, कोहेसिव फोर्स है ये नीचे खींचने वाला। तो जितना कोहेसिव फोर्स हो रहा है उतना ही एडहेसिव फोर्स भी हो रहा है, उतना ही एडहेसिव फोर्स हो रहा है। और एडहेसिव फोर्स कौन लगा रहा है, ये मॉलिक्यूल पर ग्लास लगा रहा है एडहेसिव फोर्स, कितना लगा रहा है, तो उतना ही लगा रहा है जितना कोहेसिव फोर्स है। इसके कारण क्या हो रहा है, ये नीचे भी नहीं जा पा रहा, ऊपर भी नहीं जा पा रहा, एग्जैक्टली इक्वल नहीं, हम इसको ऐसा बोलेंगे, या इसको आप दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि ये जो फोर्स है कोहेसिव फोर्स अंदर जो है ये एक्शन फोर्स है, दिस इज एक्शन फोर्स। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। So force due to surface tension is acting inwards. It is trying to shrink the surface, उसको अंदर खींचना चाह रहे हैं मॉलिक्यूल को। तो एक्शन फोर्स ये, और ये ग्लास को भी अंदर खींच रहा है, ये जो बड़ा मॉलिक्यूल है इसको तो अंदर खींच रहा है, और बड़ा मॉलिक्यूल किसको अंदर खींच रहा है, ग्लास को अंदर खींच रहा है। तो ग्लास तो अंदर नहीं जाएगा, उल्टे का ग्लास इसको बाहर खींचेगा, एडहेसिव फोर्स ये वाला। और जितना लेंथ ये ब्लैक वाले एरो का है उतना ही लेंथ ग्रीन वाले एरो का होना चाहिए। और ये फोर्स किसके इक्वल है, जितना अंदर कोहेसिव फोर्स है सरफेस टेंशन का, उतना ही ये एडहेसिव फोर्स है बाहर, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। बात समझ में आ रहा है, सरफेस टेंशन अंदर जितना खींच रहा है एक्शन, ये सरफेस टेंशन टी किसको अंदर खींच रहा है, वाटर मॉलिक्यूल को अंदर खींच रहा है फर्स्ट वाला, और वाटर मॉलिक्यूल किसको अंदर खींच रहा है, ग्लास को। अब ग्लास अंदर आएगा क्या, नहीं, उल्टा ग्लास क्या कर रहा है, ये मॉलिक्यूल को उधर खींच रहा है बाहर। तो ग्लास मॉलिक्यूल ना तो इधर से जाएगा ना तो उधर जाएगा, किधर भी नहीं जाएगा वो ग्लास मॉलिक्यूल, सॉरी ये जो रेड वाला मॉलिक्यूल है ना तो ये इधर जाएगा तिरछा लेफ्ट की तरफ भी नहीं जाएगा और राइट की तरफ भी नहीं जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात समझो, we can resolve this component T, we can resolve this T into two perpendicular components। ये जो सरफेस टेंशन का अंदर फोर्स है उसके इक्वल बाहर भी, इसीलिए मॉलिक्यूल ना नीचे जाता है ना ऊपर जाता है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कौन कौन से ड्रॉ करेंगे हम, तो ये देखो T है और ये क्या एंगल है, थीटा। तो यहां पर भी क्या एंगल बनेगा, अगर मैं इसके दो कंपोनेंट्स ऐसे बना लेता हूं, एक ऊपर बना लेता हूं ऐसा, एक ऐसा ऊपर बना लेता हूं और एक इधर बना लेता हूं, हो गए दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल। आपको मालूम है कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, ये थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो ये भी थीटा होगा। पूछो क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। और हमने कई बार पढ़ चुके थे जिधर थीटा रहता उधर cos थीटा रहता, तो अगर ये बीच का t है तो ये ऊपर हो जाएगा t cos थीटा और ये हो जाएगा t sin थीटा। मतलब ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ का, बात समझ रहे हो, यहाँ का जो मॉलिक्यूल है इसमें दो फोर्सेस एक्ट हो रहे थे, कुछ समय पहले इसमें दो फोर्सेस एक्ट हो रहे थे, कोहेसिव फोर्स इधर खींच रहा था, एडहेसिव फोर्स इधर खींच रहा था। एडहेसिव फोर्स के दो कंपोनेंट्स बन गए, एक t cos थीटा और एक t sin थीटा, ठीक है, एक t cos थीटा एक t sin थीटा। और t cos थीटा इधर t sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, पूछो क्यों, t sin थीटा उधर खींच रहा है लेफ्ट की तरफ और इधर में भी एक t sin थीटा ऐसा रहेगा, यहां पर भी वही कहानी रिपीट होगी, यहां पर में भी ऊपर एक, यहां पे भी एक मॉलिक्यूल है इसका भी ऊपर t cos थीटा रहेगा और इधर भी t sin थीटा रहेगा और वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ t का मतलब क्या है, t इज नॉट टाइम पीरियड, t इज नॉट एनी अदर थिंग, t इज हियर सरफेस टेंशन, t यानी सरफेस टेंशन। जितना सरफेस टेंशन से नीचे खींच रहा है फोर्स से उतना ही इधर खींच रहा है ग्लास। इधर कौन खींच रहा, अंदर लिक्विड मॉलिक्यूल्स, बाहर कौन खींच रहा, ग्लास। दोनों का फोर्स कैसा है, इक्वल एंड ऑपोजिट, डायरेक्शन में ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है। अब t के हमने दो कंपोनेंट्स बनाए, t sin थीटा t cos थीटा, t sin थीटा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि गोल जो ये ऐसा सरफेस रहेगा, ये जो मॉलिक्यूल्स अब इसको हम ऐसा दिख रहे हैं, ये टॉप व्यू, आप ऊपर जाके इसको देखोगे तो मॉलिक्यूल्स ऐसे दिखेंगे गोल सर्कमफरेंस पे, है ना। साइड से देख रहे तो आपको ऐसी कॉन्केव सरफेस दिख रही है, लेकिन अगर आप सुपरमैन बन गए चादर पहन के और ऊपर से देख रहे तो आपको ऐसी सरफेस दिखेगी गोल। और ये जो गोल सरफेस है, ये इसके अंदर जो गोल सरफेस है आप ऊपर से देख रहे हो, दीज आर योर आईज,
एंड यू आर लुकिंग डाउन हियर, आप नीचे देख रहे हो, तो आपको क्या दिखेगा मालूम है कि ये इसको इधर जितना खींच रहा है दूसरा वाला उधर खींच ले रहा है ऑपोजिट में, तो t sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। मतलब सर्कमफरेंस पर अगर ये मॉलिक्यूल इधर खींचा जा रहा है तो ये मॉलिक्यूल इधर खींचा जा रहा है, एक दूसरे को कैंसिल। ये मॉलिक्यूल इधर खींचा जा रहा है तो ये मॉलिक्यूल इधर खींचा जा रहा है, ये मॉलिक्यूल इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, एक दूसरे को t sin थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। टॉप व्यू से देख रहे हैं आप, ये हॉरिजॉन्टल इधर जा रहा है, इसका t sin थीटा, और इसका t sin थीटा इधर जा रहा है, इसका उधर जा रहा है तो इसका इधर, t sin थीटा विल बी कैंसल्ड। लेकिन t cos थीटा का क्या होगा, तो t cos थीटा के कारण वाटर का लेवल बढ़ेगा और बढ़कर कहां तक आ जाएगा, यहां तक आ जाएगा। पहले t cos थीटा कहां एक्ट हो रहा था, ये यहां t cos थीटा। इमेजिन करो ये जो डायग्राम मैंने यहाँ के लिए बना, एक्चुअली सच में तो ये यहाँ बनाना चाहिए, ये मॉलिक्यूल है रेड वाला, और ये रेड वाले मॉलिक्यूल पर नीचे क्या एक्ट हो रहा है, टी। ये टी के कारण इसका ऑपोजिट हमने बना लिया दूसरा टी, ये टी हो गया, ठीक है। ये इस वाले में भी बना के बता देता हूँ, थोड़ा बड़ा पिक्चर बनेगा, लेकिन वो ऊपर है, यहाँ वाले पे बनाते। ये सरफेस टेंशन टी इधर एक्ट हो रहा, तो ये टी बाहर भी एक्ट हो रहा उधर, टी cos थीटा हो गया और ये टी sin थीटा हो गया। टी sin थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, इधर का टी sin थीटा, इधर का हर तरफ का सर्कमफरेंस पे हर पॉइंट दो एक दूसरे के ऑपोजिट है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। टी cos थीटा क्या कर रहा है, लिक्विड को ऊपर ले जाएगा, टी cos थीटा ऊपर जाएगा। और आपको मालूम है लिक्विड क्या किया है यहाँ पर, लिक्विड ने, लिक्विड को ग्लास से प्यार है और लिक्विड ऊपर चढ़ेगा, लिक्विड ऊपर चढ़ेगा, समझ रहे हो। और लिक्विड ऊपर चढ़ाने वाला फोर्स कौन सा है, तो ये टी cos थीटा है। टी cos थीटा के कारण लिक्विड ऊपर चढ़ेगा और लिक्विड ये यहाँ आ गया, तो ये देखो ये टी cos थीटा है। अब ऊपर कौन सा फोर्स खींच रहा है, टी cos थीटा खींच रहा है। कहाँ से खींच रहा है, ये देखो ऐसा, ये टी cos थीटा, ये ड्रॉप को ऐसा खींच रहा है। हमको साइड से ऐसा लग रहा है कि कॉर्नर पे एक्ट हो रहा है, वो पूरी सर्कमफरेंस पे एक्ट हो रहा है। टी cos थीटा, 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 टी cos थीटा। सब पूरी सर्कमफरेंस के जो मॉलिक्यूल्स है सबको वो ऊपर खींच रहा है। और इसके कारण क्या हो रहा, जब आप टॉप व्यू ऊपर से जाकर उसके अंदर झांककर देखते हो वो कैपिलरी ट्यूब के अंदर, तो बीच में आपको डिप्रेशन दिखेगा, गड्ढा दिखेगा, और साइड के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे ये ऊपर रहेंगे, है ना। इसको अगर और हम थोड़ा ऐसा बनाए तो ये ऐसा दिखेगा, यानी बीच के मॉलिक्यूल्स अंदर धंसे हुए रहेंगे सेंटर के, और बॉर्डर सर्कमफरेंस के मॉलिक्यूल्स ऊपर आ जाएंगे। इस तरह क्या होगा, लिक्विड का लेवल ऊपर आ जाएगा और वो कटोरी जैसा बन जाएगा। इसीलिए तो साइड से कटोरी दिख रही ना, कॉनकेव अपवर्ड दिख रहा ना, ठीक है। देखो फिजिक्स इज फुल ऑफ इमेजिनेशन। न्यूटन ने इमेजिन किया था, आइंस्टाइन इमेजिन, सब इमेजिन करते हैं फिर उसको विजुअलाइज करते हैं। तो ये हमको इमेजिन करना पड़ेगा। साइड का लिक्विड क्या हुआ, सर्कमफरेंस का ऊपर आ गया, बीच का लिक्विड वैसे ही रहेगा। पूछो बीच का लिक्विड वैसे क्यों है, क्योंकि बीच का जो लिक्विड है वो ग्लास के कांटेक्ट में नहीं है। ग्लास के कांटेक्ट में ओनली कौन सा लिक्विड है, जो सर्कमफरेंस पे है। तो जो सर्कमफरेंस का लिक्विड है वो ऊपर चला जाएगा। किसने खींचा उसको, टी cos थीटा ने खींचा। तो टोटल अपवर्ड फोर्स कितना हो रहा, मैं कहां लिखूं, क्या बिटा हुआ बीच में से मैं, क्योंकि मैंने तो बोर्ड पे जूम कर लिया। एक्चुअली आपको दिख गया होगा ना, मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। आई होप आपको ये दिख गया, समझ गया। मैं इसको जूम आउट करता हूँ आप, ताकि हमको पूरा बोर्ड का दिखाई दे और हमारा डेरिवेशन आगे बढ़े। नाउ द फोकस विल बी हियर। सी, अब मैं डेरिवेशन यहाँ लिख रहा हूँ। लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशन। टोटल अपवर्ड फोर्स, ये ग्लास कैपिलरी ट्यूब है, आपको मालूम है। इसको नाम हम इधर दे देते, दिस इज ग्लास कैपिलरी ट्यूब, ग्लास सी ट्यूब। सी ट्यूब इज कैपिलरी ट्यूब। डेरिवेशन देखो, टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू, ऊपर कौन सा फोर्स खींच रहा है, टी cos थीटा खींच रहा है, बोलो यस या नहीं, है क्या, नहीं खींच रहा है, इनटू, देखो मैं क्या लिख रहा है, 2 पाई r। पूछो 2 पाई r क्यों लिखे, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल्स आपने ऊपर से जाके देखे, तो किनारे पे जो मॉलिक्यूल्स थे जो सर्कमफरेंस पे ग्लास को टच हो रहे, पूरे 2 पाई r के मॉलिक्यूल्स जो ग्लास को टच हो रहे, वो सब मॉलिक्यूल ऊपर चले गए।
और बीच के जो मॉलिक्यूल्स है उनको ग्लास के कांटेक्ट में नहीं है, वो बीच में है, इसलिए वो वहीं के वहीं रह गए, है ना। अगर आपने एक कप में चाय लिए और उसमें बीच में चाय के कप में चाय फुल भरी थोड़ी कम है और आपने चाय के बीच में फूंक मारे तो गड्ढा कहाँ पे बनेगा, चाय के लिए बीच में गड्ढा बनेगा और साइड की चाय ऊपर रहेगी। इमेजिन कर सकते हैं कि बीच में गड्ढा जैसा बन जाएगा, फूंक मारने से प्रेशर के कारण कॉन्केव और साइड का ऊपर रह जाएगा। तो ये कॉन्केव का 2 पाई r पर एक ऊपर फोर्स लग रहा है t cos थीटा, ये क्या कर रहा है, लिक्विड को ऊपर चढ़ा रहा है। अब टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है, टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू, कौन सा फोर्स है जो इनको मॉलिक्यूल्स को नीचे खींच रहा है, तो इट इज द वेट ऑफ द मॉलिक्यूल। यहां जो मॉलिक्यूल है उसका वेट उसको नीचे खींच रहा है mg, इट इज द वेट ऑफ लिक्विड कॉलम। सिर्फ एक मॉलिक्यूल को नीचे नहीं खींच रहा, ये पूरा हाइट h तक जितना लिक्विड है इस सबका वेट नीचे खींच रहा है ना, सबको वेट नीचे खींच रहा है। ये लिक्विड सरफेस टेंशन ने लिक्विड को कहां तक चढ़ा दिया, यहां तक, यहां हाइट तक। सरफेस टेंशन के कारण लिक्विड कितने हाइट तक चढ़ गया, h। अब उसके आगे और लिक्विड ऊपर चढ़ना चाहता है, सरफेस टेंशन उसको चढ़ाना चाहता है, ग्लास का एडहेसिव फोर्स ऊपर खींचना चाहता है, लेकिन सरफेस टेंशन का जो t cos थीटा कंपोनेंट है वो ऊपर खींचना चाह रहा है और ये लिक्विड जो है यहाँ कॉलम में का उसका वेट उसको नीचे खींचना चाह रहा है। देखो वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम, सरफेस टेंशन के कारण लिक्विड क्या हुआ, ऊपर चढ़ रहा है। पूरे सरफेस टेंशन के कारण लिक्विड ऊपर चढ़ा क्या, नहीं, सरफेस टेंशन का t cos थीटा जो कंपोनेंट है उसके कारण लिक्विड ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है। t cos थीटा ने लिक्विड को ऊपर चढ़ा दिया, क्यों, पहले t cos थीटा की वैल्यू ज्यादा पड़ रही थी और वेट नहीं था। अब ये लिक्विड यहां तक चढ़ रहा तो ये लिक्विड का वेट, ये कॉलम में जो लिक्विड है इस लिक्विड का वेट को ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींच रहा है, तो लिक्विड का वेट नीचे खींच रहा है और t cos थीटा ऊपर खींच रहा है। तो वेट ऑफ द लिक्विड कितना होगा, m into g। आपको मालूम है वेट इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो m into g वेट ऑफ द लिक्विड। मास की जगह मैं लिख सकता डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू g। मास की जगह क्या लिख दिया मैंने, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। साइड में लिखना पड़ेगा कहीं, ये सुपरमैन को हटाता हूं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। बाद में हम कहीं पर लिख देंगे रो इज द डेंसिटी, m इज द मास ऑफ द लिक्विड इन द ये कॉलम h, v इज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब वगैरह वगैरह। तो ये हो गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू h। डेंसिटी रो, डेंसिटी क्या है, लिक्विड की डेंसिटी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम कितना है, v क्या है, लिख दूं क्या साइड में पहले मैं, रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, v इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कॉलम, v is the volume of liquid column in capillary tube। कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड कॉलम है उसका वेट, उसका वॉल्यूम है v एंड क्या है बचा m। m इज द मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ, नीचे का दिखता है, m इज, ये यहां लिख दो, m इज इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड कॉलम। अब ये लिक्विड कॉलम लिख दिया तो समझ जाओ कहां की कॉलम है, इन सी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब को मैं शॉर्टकट में ना सी ट्यूब लिख रहा। सो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब यहां से इतनी हाइट होना चाहिए थी, यहां से हाइट ऊपर चढ़ी हुई है, तो इतनी हाइट में कितना वॉल्यूम होगा लिक्विड का, तो लिक्विड का वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर h। व्हाट इज स्मॉल r, स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। व्हाट इज स्मॉल r, रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। कहां लिखूं अब मैं, क्या मिटाऊं इसमें से, वो ओनली कैपिलरी ट्यूब हटा देता हूं, इसका हमको काम ही नहीं पड़ा। व्हाट इज, यहां पूरे टर्म्स लिख लेंगे अपन। रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, v इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कॉलम in C tube, m mass of
लिक्विड कॉलम। अरे कौन से लिक्विड का मास ले रहे हैं हम? जो सिर्फ ये हाइट h में है, मास ऑफ लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट h इन सी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब में ये जो इतने हाइट का जो लिक्विड है इतने वॉल्यूम में, बस उसका मास ले रहे हैं हम, वो मास है m। ये पूरे टब में जो मास भरा हुआ वो लिक्विड, उसका मास नहीं ले रहे, मास इज ओनली m ऑफ दिस मच वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं हम? स्मॉल r। स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब की रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको समझती है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी। समझ रहे हो? अब इस कंडीशन में मुझे ये बताओ कि ये लिक्विड अब यहां आने के बाद, ये लिक्विड यहां चढ़ने के बाद ये ऊपर आ गया यहां पे, अब यहां आने के बाद ये लिक्विड ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? ये तो इक्विलिब्रियम हो गया। नाउ द लिक्विड इज नाइदर गोइंग अप नॉर गोइंग डाउन। यहां लिख देता मैं, आफ्टर, यहां लिखता हूं, आफ्टर राइजिंग टू हाइट h, आफ्टर राइजिंग टू हाइट HIGHT, हाइट h in C tube, capillary tube, now the liquid is neither going up nor coming down। और इसी को बुक में क्या लिखा है? इट इज इन इक्विलिब्रियम। टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में बोला इक्विलिब्रियम, लेकिन मैंने आपको इक्विलिब्रियम का मीनिंग भी समझा दिया। इक्विलिब्रियम यानी अब लिक्विड जब यहां तक हाइट पर चढ़ गया है ना, ये लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में कहां तक चढ़ा? हाइट h तक चढ़ गया। ये लिक्विड है, ये देखो, ये लिक्विड हाइट h तक चढ़ गया, इसके ऊपर भी नहीं जा रहा, अब नीचे भी नहीं जा रहा, अब हो गई उसकी हाइट फाइनल। पहले कहां तक राइज हुआ? वो हाइट h तक राइज हुआ, उसके बाद अब ऊपर भी नहीं जा रहा और नीचे भी नहीं जा रहा, बिकॉज इक्विलिब्रियम है। क्यों? क्योंकि टोटल अपवर्ड फोर्स, टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। टोटल अपवर्ड फोर्स किसके इक्वल हो गया? टोटल डाउनवर्ड फोर्स के। और टोटल अपवर्ड फोर्स कितना है? t cos थीटा इंटू 2 पाई आर। और टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है? रो पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी। दिख रहा है आपको? सी में थोड़ी देर के लिए जूम कर दिया मैंने वहां पर। आफ्टर राइजिंग टू हाइट h, लिक्विड ऊपर चढ़ जाने के बाद, कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड थोड़ा ऊपर तक चढ़ गया। नाउ द लिक्विड इज नाइदर गोइंग फर्दर अप नॉर कमिंग डाउन, है ना। नाउ द लिक्विड इज गोइंग, द लिक्विड इज नाइदर गोइंग फर्दर अप, लिख देता हूं यहां, फर्दर अप, और यहां लिखता नॉर कमिंग डाउन। फर्दर अप यानी अब इससे ज्यादा ऊपर लिक्विड नहीं जा रहा और नीचे भी नहीं आ रहा। इसका मतलब दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हो गए, एक दूसरे को बैलेंस कर लिए उन्होंने। टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। अब इसके आगे का डेरिवेशन, इसके आगे का डेरिवेशन मैं राइट हैंड साइड पे लिखता हूं, ठीक है। टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, ये यहां पर लिखा हूं। वो स्टेप के आगे का यहां लिखा हूं, फिर से ये रिपीट करता हूं। टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। टोटल अपवर्ड फोर्स कितना है? ऊपर कौन खींच रहा है? टी कॉस थीटा खींच रहा है। किसको खींच रहा? पूरे सरकमफेरेंस के मॉलिक्यूल्स को खींच रहा, 2 पाई आर। मैंने आर चेंज कर दिया थोड़ा, देखो पहले जाने दो, ये आर बनाया, पूरे सरकमफेरेंस के मॉलिक्यूल्स को ऊपर खींच रहा है। डाउनवर्ड फोर्स क्या है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच इनटू जी, एम इनटू जी हो गया वो टोटल वेट ऑफ द लिक्विड, रो पाई आर स्क्वायर एच जी। अब इसमें कैंसिल क्या हो रहा? तो पाई कैंसिल हो रहा,
आर स्क्वायर था, एक आर कैंसिल और एक आर इधर कैंसिल हो गया। और क्या हो रहा है, बस अब यहाँ देखो क्या बचा, ये 2 बचा, तो ये 2t cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, रो आर एच जी, रो आर एच जी, मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, आर एच रो जी, मैंने ऐसा लिख दिया। अब सरफेस टेंशन अगर हमको पता करना है लिक्विड का, तो ये फॉर्मूला देखिए क्या होगा, 2t फ्रूटी cos थीटा इज इक्वल टू आर एच रो जी। अच्छा मुझे अगर हाइट पता करना है कितनी हाइट तक लिक्विड चढ़ेगा, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, h इज देयरफॉर h इज इक्वल टू 2t फ्रूटी cos थीटा अपॉन r रो g, दिस इज द फॉर्मूला। ये आ गया फॉर्मूला, और इस डेरिवेशन का नाम क्या है, असेंट फॉर्मूला। असेंट यानी असेंडिंग, ASCENT, असेंट फॉर्मूला। असेंट यानी असेंडिंग, और असेंडिंग यानी ऊपर चढ़ना, डिसेंड यानी नीचे आना, असेंट फॉर्मूला भी बोलते हैं इसको। और ये डिराइव सबसे पहले जो है जिगर ने किया था, शायद अपनी बुक में लिखा है कि इसके बारे में नहीं लिखा है। कैपिलरी राइज फॉर्मूला भी बोलते हैं, सिंपली राइज होता जरूरी नहीं है, मर्क्यूरी का फॉल होता है। चलो जाने दो, ये समझ गए, h इज इक्वल टू 2t फ्रूटी cos थीटा अपॉन r रो g। अब इस फॉर्मूला में बहुत सारी चीजें समझ में आती है। T इज सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन फॉर लिक्विड इज कांस्टेंट, इस डेरिवेशन में यहां मेंशन कर दो इधर, T इज सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, ठीक है। थीटा क्या है, कहां लिखूं मैं, ये पूरा बोर्ड भर गया। थीटा इज सरफेस टेंशन, सॉरी, थीटा इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, थीटा इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। h क्या है, हाइट ऑफ लिक्विड, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। अब ध्यान से समझो, फॉर वेटिंग लिक्विड्स जैसे वाटर एंड ग्लास है, केरोसिन एंड ग्लास है, तो थीटा कैसा रहता है, एक्यूट, एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट रहता, और कॉस के सामने एक्यूट एंगल रहे तो वैल्यू कैसी आती, पॉजिटिव आती। कॉस एक्यूट की वैल्यू पॉजिटिव आती है, कॉस 0 पॉजिटिव वैल्यू है, +1, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, ठीक है। कॉस 90 कितना है, 0 है, ठीक है। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री रहेगा तो cos 90 क्या होगा, 0। ये हाइट कितनी बचेगी फिर, h इज 0, यानी इंक्रीज भी नहीं होगा डिक्रीज भी नहीं होगा अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री रहा तो। और अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 180 डिग्री रहा तो यहां याद रखना, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री देन h will be नेगेटिव, हाइट नेगेटिव में आएंगी, which means liquid will fall, liquid level will fall। मर्क्यूरी का कल मैं पुराने लेक्चर में बताया था मैंने कि मर्क्यूरी का क्या होता है, लेवल डिप्रेस होता है। अब डायग्राम बनाने की जगह नहीं बची हमारे पास, तो लिक्विड का लेवल डाउन हो जाता है। ये कैपिलरी, इसमें क्या हुआ, बाकी साइड के लिक्विड के मुकाबले में इसका राइज हुआ, लिक्विड ऊपर चढ़ा। मर्क्यूरी में क्या होता है, साइड के लिक्विड की लेवल इतनी है तो मर्क्यूरी के लेवल उल्टा नीचे हो जाता, पाइप में अंदर धंस जाता हो। कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड बाजू की लेवल बढ़ जाती हो, कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है उसकी लेवल अंदर धंस जाती है। पुराना लेक्चर याद रखो, इससे पहले वाले लेक्चर में हम देख चुके हैं। मैं यहाँ डायग्राम बनाने की अच्छी जगह नहीं बची है, शायद आपको यहाँ दिखता होगा तो बना लेता है ग्राफ। मर्क्यूरी ऐसा होता है, देखो ये कैपिलरी ट्यूब है, मर्क्यूरी यहाँ तक है ऐसा भरा हुआ, ये हम पुराने लेक्चर में पढ़ चुके हैं। मर्क्यूरी अगर यहाँ तक भरा हुआ है बाहर में तो इसमें मर्क्यूरी का लेवल ये रहेगा, और यहाँ H मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक मर्क्यूरी का लेवल डाउन हो गया, H ये मर्क्यूरी है यहाँ, ठीक है। और यहाँ ऊपर में क्या है, तो यहाँ एयर है और ये मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी में क्या होता है, लेवल डाउन हो जाता है H से, और इधर लिक्विड क्या हुआ, अप हो गया।
तो जिसके लिए थीटा 90 डिग्री से ज्यादा रहेगा ऑब्ट्यूज एंगल नॉन वेटिंग लिक्विड उसका लेवल डाउन होता है क्योंकि h की वैल्यू माइनस में आएंगी, h की वैल्यू माइनस में है मतलब लेवल डाउन हो रहा है। जैसे मर्क्यूरी के लिए थीटा कितना है 140 डिग्री एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो मर्क्यूरी का एंगल ऑफ कांटेक्ट cos 140 डिग्री हो जाएगा। cos 140 डिग्री यानी हम cos 90 प्लस 50 कर देंगे, cos 90 प्लस 50 कर देंगे तो माइनस साइन 50 आ जाएगा। साइन 50 का वैल्यू हम लॉग बुक से देख लेंगे और माइनस साइन 50 रहेगा तो हाइट की वैल्यू माइनस में आएगी। ठीक है, मैंने सिर्फ यहाँ लिखा इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री देन h विल बी नेगेटिव व्हिच मींस लिक्विड लेवल विल फॉल एंड इफ, अब वो कहां लिखूं मैं, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री then level of liquid will rise। और मैं थर्ड कंडीशन नहीं लिख रहा हूं कि अगर थीटा एग्जैक्टली 90 डिग्रीज होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री होता है, सिल्वर के बर्तन में पानी ले लिया हमने तो एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर 90 डिग्री होता है तो cos 90 जीरो हो जाएगा यानी हाइट जीरो रहेगी, यानी राइज भी जीरो फॉल भी जीरो, लिक्विड लेवल बढ़ेगा भी नहीं और घटेगा भी नहीं अगर ये होता है। अच्छा व्हाट इज, देखो सरफेस टेंशन फॉर अ गिवन लिक्विड एंड सॉलिड पेयर इज कांस्टेंट, surface tension constant, angle of contact for a given pair of solid and liquid constant, acceleration due to gravity at a particular place constant, density of a particular liquid constant। h और r में क्या रिलेशन है, तो h is inversely proportional to r। ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि बारीक नली वाला ट्यूब लेंगे, if the area of cross section, radius of cross section of the capillary tube is small then rise or fall height will be more or less will be negative पॉजिटिव जो भी है। तो रेडियस अगर ये फॉर वाटर एंड ग्लास के लिए अगर कैपिलरी ट्यूब की रेडियस कम है तो हाइट ज्यादा हाइट पे चढ़ेगा, और अगर पतला ट्यूब है तो ज्यादा हाइट पे चढ़ेगा और ज्यादा ट्यूब है तो हाइट कम चढ़ेगा। ये देखो यहाँ हाइट इतनी चढ़ा, अब मैं यहीं पे दूसरा कैपिलरी ट्यूब बना देता एक जाड़ा वाला, ये देखो ये दूसरा कैपिलरी ट्यूब है, ये दूसरा कैपिलरी ट्यूब है, इसमें इतनी हाइट चढ़ा तो इसमें कितने चढ़ेगा, ये इतना चढ़ेगा ओनली, बस। ये क्यों, क्योंकि इसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है और इसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। तो जाड़ा ट्यूब रहेगा तो हाइट कम चढ़ेगा, बारीक ट्यूब रहेगा पतला ट्यूब रहेगा तो हाइट ज्यादा चढ़ेगा। h और r में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। अब इससे रिलेटेड और एक दो बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये कैपिलरी ट्यूब बारीक वाला और ये लेकर मैं स्पेसक्राफ्ट में बैठ गया और मैं ऊपर चले गया स्पेस में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन चला गया मैं, वहां ऊपर जाकर, तो ये लिक्विड g के कम होने से h क्या होता, g के कम होने से h क्या होता, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है तो हाइट क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे जैसे मैं स्पेस में जाऊंगा ऊपर ऊपर तो g क्या होगा, कम होगा, तो हाइट क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और हाइट बढ़ते 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 लिक्विड यहाँ तक आ जाना चाहिए, और अगर मैं और ऊपर जाऊँ तो लिक्विड इसमें से गिरना चाहिए। लेकिन अगर मैं स्पेस में चले जाता हूँ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और बहुत ऊपर स्पेस कितने भी ऊपर, तो क्या मालूम है ये लिक्विड ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक चढ़ेगा, ये ओवरफ्लो नहीं होगा, बाजू में से भी गिरेगा नहीं, इसके ऊपर में बाजू से निथर कर गिरेगा नहीं और फवारा बनके उड़ेगा भी। लिक्विड बस मैक्सिमम हाइट यहाँ तक चढ़ सकता है, इससे ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ेगा। अगर भले ही जी कम हो जाए, मैं स्पेस में चला जाऊं तो भी ऐसा नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। हैव अ नाइस डे, स्टडी हार्ड। एंड दूसरी बात ये याद रखना कि इससे पहले कि मैं वीडियोस प्राइवेट करता जाऊं, जैसे जैसे वीडियोस अपलोड होते हैं वैसे वैसे देख लिया करो। अगर कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो आपका भी काम बनता है कि थोड़ा, और ये अल्टीमेटली आप ही के बेनिफिट के लिए सब कुछ, तो वीडियोस रेगुलरली देखा करो ताकि आपका बेनिफिट हो और मुझे भी सेटिस्फैक्शन लगे कि मेरे वीडियोस आप देख रहे हो, मुझे और एनकरेजमेंट मिलेगा, मैं और बनाऊंगा, है ना। अभी देखो मैंने कई दिनों से ना दूसरी एक क्लास के सीबीएसई बोर्ड की वीडियोस कई दिनों से मैं बना ही नहीं रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ स्टूडेंट्स देख रहे नहीं थे, तो मेरा इंटरेस्ट हट गया। तो आप जितना वीडियोस देखोगे, क्वेश्चंस पूछोगे, मुझे एनकरेजमेंट मिलता है और मैं और बनाता हूँ, ठीक है। चलो, हैव अ नाइस टाइम।